Now we'll discuss objective 2, chapter 5, NLM. Let's see question 1. Reference frame attached to the earth is inertial? No. Cannot be inertial because the earth is revolving around the sun. Yes, because accelerated motion. Is inertial frame because Newton's laws are applicable. Newton's laws are applicable because distances covered are small as compared to size of the earth, but it is non-inertial. Cannot be inertial frame because the earth is rotating. तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है. It is non-inertial because of accelerated motion, and here also revolving से भी accelerated motion. B and D. But for small motion, we assume it inertial and solve the problems. Large scale, it is non-inertial. Question number 2. Particle stays at rest seen in the frame. We can conclude that frame is inertial. No, non-inertial frame में भी particle can stay at rest. Suppose train कोई accelerate हो रही है, ऑब्जेक्ट कोई पड़ा है तो वो रेस्ट पर रह सकता है फ्रिक्शन की वजह से. दिस इज नॉट करेक्ट. Resultant force on the particle is 0. No, resultant force on the particle may not be 0. Then also it can appear at rest. For example, particle is accelerating with A. Frame of reference is also accelerating with frame with A. So that particle will be appeared at rest with respect to that frame because both are having same acceleration. So resultant force will not be 0 on the particle. This is also wrong. Frame may be inertial, but resultant force. Frame may be inertial, but resultant force on the particle is 0. Yes, inertial frame अगर suppose ground है, ground से देख रहे particle को, तब rest पर रहेगा. Rest पर होगा तो net force will be, resultant force will be 0. Then only it can remain at rest. तो C correct. D देखते हैं. ठीक है, C में shall I explain you again? Particle is at rest on the ground. Seen from the ground, it will be at rest. Net resultant force will be 0. Then only it can remain at rest. D option देखेंगे. Frame may be non-inertial, but there is non-zero resultant force. Correct है देखो. इसके ऊपर non-zero resultant force है ना. Acceleration A से move कर रहा है. Frame भी non-inertial है, तो उसको रेस्ट पर देखेगा. That is what is the condition. रेस्ट पर दिखने की कंडीशन की बात हो रही है. तो C and D are correct. Question number 3 देखेंगे. Particle is found to be at rest when seen from the reference S1. Reference frame S1 से देखें moving with the constant velocity. तो okay, particle is found to be at rest when seen from the frame S1. S1 से उसको देखा तो रेस्ट पर है, and moving with the constant velocity when seen from the another frame S2. S2 से वो वेलोसिटी v से दिख रहा है. तो ये कंडीशन होगी. पार्टिकल खुद रेस्ट पर है ग्राउंड में, S1 इज ग्राउंड और S2 इज से ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो उसको पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिखेगा. तो दोनों फ्रेम कैसे है? इस फ्रेम में तो रेस्ट पे दिख रहा है, इस फ्रेम में ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिख रहा है. तो दोनों फ्रेम कैसे है? इनर्शियल. बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल. ए इज करेक्ट. अच्छा, सेकंड वन देखते हैं. बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल. चलो देखते हैं सेकंड सिचुएशन. पार्टिकल p 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है. एक्सीलरेशन भी उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और फ्रेम S1 भी 10 से जा रहा है, उसका भी एक्सीलरेशन सेम है. तो रेस्ट पर दिखेगा उसको. वही कंडीशन है S1 से रेस्ट पर दिखने की, और S2 से कांस्टेंट वेलोसिटी. सपोज S2 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन उसका भी सेम है. तो
जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा 10 एंड 5 का। 5 S2 से उसको 5 से जाता हुआ दिखेगा आगे। तो ये S2 की कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन मैच, दोनों। इसका मतलब क्या है, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनिशियल। S1 भी एक्सीलरेटेड हो रहा है, S2 भी एक्सीलरेटेड हो रहा है। B इज आल्सो करेक्ट। C चेक करते हैं, S1 इज इनर्शियल, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले लो, S1 को भी रेस्ट पे ले लो इनर्शियल, एंड S2 इज नॉन इनर्शियल। S2 का एक्सीलरेशन रखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फिर कांस्टेंट स्पीड से नहीं दिखेगा उसको, इसका एक्सीलरेटेड मोशन देखेगा पीछे, -1 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी फिर। S2 से जब देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो C is not matching with this given condition. सिमिलरली D के लिए भी सेम सिचुएशन आ जाएगी, ऐसे ही चेक करेंगे सेम सिचुएशन। मतलब दोनों फ्रेम या तो इनर्शियल होने चाहिए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में दिखने के लिए, या दोनों ही एक्सीलरेटेड होने चाहिए ऑब्जेक्ट को रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर एक फ्रेम रेस्ट पर है, एक फ्रेम इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल, ये कंडीशन मैच नहीं करेंगे ये वाली। ऑलराइट, फोर्थ इज figure shows the displacement of particle going along the x-axis as a function of time. The force acting on the particle is 0 in the region. जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्स 0 होगा, F = ma होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है AB, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो C ऑप्शन, CD में और AB में there is no force acting on the particle. We see this question 5 shows the heavy block on a frictionless surface and being pulled by the two ropes of equal mass M at T = 0. The force on the left rope is withdrawn but the force on the right end continues to act. Let F1, F2 be the magnitude of forces of the right rope and the left rope on the block respectively. Which of the following option is correct? देखो इसको ऐसे बना लो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग समझ लो पतली सी, यहाँ पर यहाँ फोर्स इधर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, सिस्टम रेस्ट पर है, तो इसका मतलब F1, F2 एंड F1 चारों इक्वल होने चाहिए T = 0 से पहले। T = 0 से पहले फोर्स लग रहा है इस पर, तो F1, F2, F are equal T = 0 less than 0, मतलब T = 0 पे रिमूव किया, अभी T = 0 पे इसको रिमूव कर लिया, तभी सिस्टम इधर जाएगा। तो ये वाला टेंशन F1 शुड बी ग्रेटर, F1 शुड बी F सबसे, ये सबसे बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसको ये खींचना पड़ा है। F शुड बी ग्रेटर देन F1 which should be greater than F2, Ft को तो केवल ये खींचना पड़ रहा है, F greater than F1। तो ऐसा कोई दिख रहा है? ओके विल सी, ये तो रॉन्ग हो गया, T = less than 0 से ये आ गया, T greater than 0 पर F1 एंड F बराबर बता रहा है, नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो ये आगे ही नहीं जाएगा। जब फ्रिक्शन नहीं है तो ये, जब हमने ये हटा लिया, when we remove this it will start accelerating forward direction, कितना भी बल्कि ऑब्जेक्ट क्यों ना, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, it has to go। F2 should be greater than F1, तो ये भी रॉन्ग है। F1 should be less than F, ये सही दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, F2 इसके बराबर, F2 तो सबसे कम होगा, ये टेंशन सबसे कम, क्योंकि इसको ये खींचना पड़ रहा है। तो ओनली A इज करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या मैंने लिखा था, F will be greater than F1 which will be greater than F2 when this force is removed, तभी ये इधर जाएंगे, ये तो आगे नहीं जा पाएंगे, एक्सीलरेटेड मोशन होना है ना। तो here only A is correct.
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट। मोर देन द वेट, जब लिफ्ट ऊपर जाती तो ये क्वेश्चन आती, नॉर्मल रिएक्शन इज द वेट ओनली, mg प्लस ए। तो अगर गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, नो स्लोइंग डाउन में एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है, फिर तो वेट जो है, वेट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ए इज रॉन्ग। गोइंग एंड स्पीडिंग, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, ये प्लस आएगा तो वेट विल बी मोर, तो बी करेक्ट है। गोइंग डाउन एंड स्लोइंग, डाउन में ये क्वेश्चन आती, स्लोइंग डाउन में ए माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो वेट विल बी मोर अगेन, तो सी इज आल्सो करेक्ट। और डी में स्पीडिंग अप है, तो नीचे स्पीडिंग अप है तो माइनस ही रहेगा, तो वेट विल डिक्रीज। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाती है, एक्सीलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो वेट विल बी मोर। नीचे जा रही है और स्पीड कम हो रही, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो उस समय भी वेट ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the tension in the cable supporting the elevator is equal to the weight of the elevator may be, जब टेंशन एंड वेट बराबर होते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे फार्मूला क्या होता है टेंशन का, एम जी प्लस माइनस ए, इफ ए इज जीरो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, स्पीड बोलेंगे तो चलेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। टी विल बी इक्वल टू एम जी, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो टेंशन जो है वेट के बराबर होता है। सी एंड डी, डजंट मैटर इट गोज अप और डाउन, दोनों केसेस में एमजी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S1 एंड S2। ये सपोज ये S1 है, ये S2 है, पार्टिकल बीच में ले लिया। The frame S2 moves with respect to S1 with the acceleration A. S2 A acceleration से मूव कर रहा है। F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? ठीक है, तो सपोज इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे ले लिया, तो F1 तो 0 हो जाएगा, ओके, और F2 जिसकी वजह से F2 विल बी नॉन जीरो, ये आगे एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये सही है, सूडो फोर्स बैकवर्ड लगता है। सेकंड केस देखते हैं, बी, सपोज ये रेस्ट पर हो गया अभी और ये इधर एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, इसके मतलब H2 इधर, H2 रेस्ट पर, तो H2 को क्या लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, तो रिवर्स सिचुएशन कर दी, इसको माइनस ए, इसको माइनस ए कर दिया और इसको रेस्ट पे रखा, है ना, तभी भी S2 का एक्सीलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में ए ही रहने वाला है। तो अभी इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स F1 विल बी नॉन जीरो, और ये रेस्ट पर है तो F2 विल बी जीरो, तो ये भी सही है। नॉट पॉसिबल हमें निकालना है ना, नॉट पॉसिबल वाला चेक करो, तो ये भी सही है। थर्ड केस में दोनों ही एक्सीलरेट हो रहे हैं, सपोज ये A1 से आगे जा रहा है और ये A2 से जा रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A दिया है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, F1 विल बी नॉन जीरो, बैकवर्ड फोर्स, सूडो फोर्स, इसमें भी नॉन जीरो रहेगा, है ना। फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ में क्या है, दोनों सूडो फोर्स नॉन जीरो, जीरो है, सॉरी, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी नहीं है, इसका भी नहीं है, जबकि इसमें दिया है कि S2 is having some relative acceleration with respect to S1, one of them has to accelerate, तभी इन दोनों के बीच में एक्सीलरेशन होगा A, and one of the pseudo force should be non-zero, so D is not possible.
Ninth, a person says that he measures the acceleration of a particle to be non-zero while no force was acting on the particle. तो पार्टिकल के फोर्स ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तभी भी वो बोल रहा था कि एक्सेलेरेशन है. तो he is liar. No. Clock is running slow or meter scale is nothing to do with the force, nothing to do with the liar, because one possibility is there. When there is no force acting, then also person says he find there the acceleration. That is what is non-inertial frame. Person is in non-inertial frame. ये पार्टिकल है, पर्सन जो है फ्रेम S1 में एक्सीलरेट कर रहा है फ्रेम ए से, तो वो बोलेगा इसके ऊपर फोर्स ma लग रहा है वो रेस्ट पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. बट नॉन इनिशियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है, तो ही might have used non-inertial frame. D option. That's all. Thank you.